میرے بچوں کا سوچا جائے، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی مجھے سزا ملے؟ اس سے پہلے اگر مجھے میرے شوہر سے یا بچوں سے علیحدہ کیا گیا تو میں یہ زندگی ہار بیٹھوں گی، میں نہیں برداشت کر سکتی، پلیز میری مدد کی جائے۔ میں نے 10 سال اپنے سسر کی ساری بدتمیزیاں، درندگی، حیوانیت، اس کا گالیاں دینا صرف اور صرف اپنی اولاد کی خاطر برداشت کی، اور جب میری ساس فوت ہو گئی تو اس کی درندگی، اس کی حیوانیت اور اس کی گالی گلوچ میں اضافہ ہو گیا۔ وہ بات کرنے نہیں آیا تھا، وہ مجھے برباد کرنے آیا تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اس کو اپنے کمرے سے نکالا اور لاک لگایا۔ میرے سسر خاموشی سے میرے کمرے میں داخل ہوئے، جو حواس باختہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے میری یہی شال میرے لپیٹی تھی، انہوں نے میرے اوپر سے اتار دی، میں چیخیں مارنا شروع ہو گئی، انہوں نے مجھے زبردستی پکڑا۔ اس کے بعد میں چیخی چلا، سسر نے مجھے ہیراس کیا، سیکشول ہیراس کیا۔ شوہر کو یہ کہا کہ اس عورت کو طلاق دے دو، کیونکہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ میری والدہ ایک بیمار عورت ہے، گھر آ کے معافیا مانگ چکے، ان کی بیٹی بس جائے۔ سسر کو اپنا باپ ہی سمجھتی، باپ کب درندہ بن جائے۔ 10 سال سے ان کی ہر زیادتی برداشت کرتی رہی، مجھے جانوروں کی طرح مارا، لوہا ڈنڈا جو چیز لگی اس نے مجھے مارا۔ میں ایک عورت ہوں اور یہ میرا باپ ہے، ان اپروپریٹ جگہوں پہ بھی ہاتھ لگایا، کسی کے ہاتھ میرے بال تھے، کسی نے میرے سر پہ جوتیاں ماری۔ وہ بہت عرصے سے میرے سے یہ کام کروانا چاہتے، پر میں نے ان سے ہمیشہ قطع تعلقی اختیار کی۔ میں ان کی نیت بھام گئی تھی، میری زندگی ہی مجھ پہ تنگ کر دی، جس میں اتنے گندے جسم کے حصوں کے نام لیے جاتے تھے جو مقصد کامیاب نہ ہونے پہ میرے سر سے چھت چھین رہے۔ میری برداشت ختم ہو گئی۔ دیکھیں میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں مار کھانا اور اس طرح کے ہیراسمنٹ ڈیزرو نہیں کرتی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں MP نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسی ہوا کی بیٹی جس کی عزت اس کے سسر کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے جو باپ ہوتا ہے، جس کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، اور اسی باپ نے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، سیکشل ہراسمنٹ کیا، ایک نہیں کئی بار کیا، پولیس کا سہارا لیا۔ جانتے ہیں اس سے معاملہ کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام آمنہ تیمور ہے، میں ریاست علی بھٹی کی بہو ہوں، میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ آپ ایک بڑا الزام لگا رہی ہیں اپنے سسر پر، اس سسر پر جو ایک باپ ہوتا ہے۔ جی میں بھی یہی سمجھتی تھی، لیکن یہ ایک الزام نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں اپنے سسر کو بالکل اپنا باپ ہی سمجھتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ باپ کب درندہ بن جائے گا۔ ریاست علی بھٹی جو ایک معروف کاروباری شخصیت ہے۔ جی بالکل، میں ان کی بہو ہوں، میں مسلم ٹاؤن میں رہتی ہوں اپنی 3 نندوں کے ہمراہ، ثنا ریاست، ہما ریاست اور ہنا ریاست۔ آپ کی جو نندے ہیں وہ شادی شدہ ہیں؟ جی میری تینوں نندے طلاق یافتہ ہیں، ایک جیٹھ ایڈکٹڈ ہیں جو پچھلے 10-12 سال سے نشے پہ ہیں، اور ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ ان کے 2 بچے جو اپنے باپ سے نہیں ملتے، وہ بہو بھی انہی وجہ سے تنگ آ کے چلی گئی، ایون کہ ان کے بچے بھی اسی وجہ سے اپنے دادا، اپنے باپ، اپنی پھپھوں سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ جو آپ نے یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ کی، ایک نہیں کئی بار کی، جی اور آپ نے ایک اور بڑا الزام لگا دیا کہ جو میری جٹھانی تھی وہ بھی انہی حرکتوں کی وجہ سے چھوڑ کر گئی۔ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور بات کب شروع ہوئی؟ بات شروع ہوئی، میں پچھلے 10 سال سے ان کی ہر زیادتی برداشت کرتی رہی، کیونکہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں اور میں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، لیکن 18 دسمبر کو اس بندے نے درندہ بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پہلے اس نے ایک معمولی گھریلو نوک چوک پہ مجھے مارنا شروع کر دیا، اس نے مجھے جانوروں کی طرح مارا، اس کے ہاتھ لوہا ڈنڈا جو چیز لگی اس نے مجھے مارا، میرا گلا دبایا، مجھے جان سے مارنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس دوران اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں ایک عورت ہوں اور یہ میرا باپ ہے۔ اس نے مجھے ان اپروپریٹ جگہوں پہ بھی ہاتھ لگایا جس کے لیے میری روح کانپ گئی، اور میں اس سے
कहती गई कि रुक जाओ। उसके बाद इसकी 3 बेटियां आई, उन्होंने आके मेरे पे जितना तशद्दुद करना था, इसने मुझ पे डंडे बरसाए, इसने मुझ पे लोहे की चीजें मारी, किसी के हाथ मेरे बाल थे, किसी ने मेरे सर पे जूतियां मारी। मैंने अपने शौहर से किसी तरह राब्ता करके 15 बुलाई। ये लोग मुझ पे तब तक तशद्दुद करते रहे जब तक 15 नहीं पहुंची। मेरी वालदा एक बीमार औरत है। मेरा बाप एक ज़ईफ आदमी है जो कि कई बार इनके घर आके माफिया मांग चुके हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी बच जाए। मेरा बाप इनसे 100 दफा माफी मांग चुका है, लेकिन इनको जुल्म करने की आदत है। उस दिन भी मैंने घर की बात घर में रखना चाहिए, और मेरे शौहर जब आए उन्होंने कहा कि ये तुम पे दोबारा तशद्दुद नहीं करेंगे, तुम सुलह कर लो, और मैंने इनके कहने पे सुलह कर ली। सुलह घर पे की? नहीं, हमारी सुलह थाने में हुई, और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दे, मुझे उससे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इस आदमी ने वहां पे मुझसे झूठ बोला, घर आया और इसने उसी रात मेरे शौहर को ये कहा कि इस औरत को तलाक दे दे। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, ये कहाँ का इंसाफ है कि मुझे मारा भी जाए और उसके बाद बोला जाए कि इसको तलाक दे दो, क्योंकि इसने मेरी बात नहीं मानी। आपको मारने की, इतना तशद्दुद करने की वजह क्या थी? देखिए, वो बहुत अरसे से मेरे से ये काम करवाना चाह रहे थे, बहुत अरसे से, ठीक है। मगर मैंने उनसे हमेशा कतई ताल्लुकी इख्तियार रखी। कभी मैं दूर रहती थी, मैंने कभी भी उनसे बात तक नहीं करती थी। मैं उनकी नीयत भांप गई थी। जब उनको ये लगा, उसके बाद उन्होंने दूसरे तीसरे हरबे अपना के कभी मेरे शौहर को, कभी मेरे बच्चों को तंग करना शुरू कर दिया, ताकि किसी ना किसी तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मेरी जिंदगी ही मुझ पे तंग कर दी। कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मुझे इतनी गंदी गालियां देते थे, जिसमें इतने गंदे जिस्म के हिस्सों के नाम लिए जाते थे जो कोई नहीं सुन सकता। कोई औरत कभी मेरे बाप को गाली, कभी मेरी माँ को गाली। और उसके बाद जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, जब इन्होंने मेरे पे जुल्म का हर पहाड़ तोड़ दिया, ये बात ऐसी है जो कोई भी शरीफ औरत नहीं कर सकती, उसके लिए बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने अपने बच्चों की खातिर आज ये कदम उठाया। लास्ट आपका वाकया है जो बहुत बड़ा बात थाने तक जा पहुंची। 21 दिसंबर की रात हुआ क्या था? 21 दिसंबर की रात को मेरे शौहर घर पे मौजूद नहीं थे, ठीक है। मैं इसी परेशानी में बैठी हुई थी कि मेरे साथ 18 दिसंबर को हुआ क्या है। इतनी देर में मेरे ससुर खामोशी से मेरे कमरे में दाखिल हुए। जब मैंने उनको देखा, अच्छा, आपके बेडरूम में आ गए? बेडरूम में आ गए। मैं हवास बाख्ता होगी कि ये कभी इनका मेरे बेडरूम में क्या काम। वो उधर आए और उन्होंने मुझे बोला कि तू मुझे थाने लेके गई थी, देख मैं तेरे साथ अब करता क्या, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरी यही शॉल मैंने लपेटी थी, उन्होंने मेरे ऊपर से उतार दी। मैं चीखें मारना शुरू हो गई और उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ा। उसके बाद मैं चीखी, चिल्लाई। मैंने अपने बेटे बड़े को, जिसका नाम हुज़ैफा है, मैंने उसको बुलाया कि अब्बू को भेजो यहाँ से, अब्बू को भेजो यहाँ से। शायद उसकी शर्म आ गई। मजीद बदतमीजियां जारी थी उनकी? वो बदतमीजियां करते बच्चे रहे। के भी परवाह नहीं की? नहीं, बच्चा आया तो वो थोड़ा सा थम गए, क्योंकि वो उन्होंने कहने चुके मैं तो आपकी मामा से बात करना आया हूँ। वो बात नहीं करने आया था। वो तो कपड़े उतार रहे थे, तो बात करने वाली क्या बात है? वो बात करने नहीं आया था, वो मुझे बर्बाद करने आया था। उसमें बात शामिल थी ही नहीं। मैंने जैसे तैसे करके उसको अपने कमरे से निकाला और लॉक लगाया। फिर जब मैं शोर डालने लगी तो सबने बेटियां बुला ली और उनको ये झूठ बोला कि इसने मुझसे बदतमीजी की है, लड़ाई, क्योंकि अपनी बेटियों को क्या पता था कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर उसने उसको लड़ाई का रंग दे दिया, मैं डर गई और इसकी बेटियों ने मेरे दरवाजे पीटे, मुझे डराया, मुझे धमकाया, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। और उसके बाद मैंने फिर 15 को कॉल की, 21 दिसंबर की रात को। जो आपकी नंदे थी उन्होंने भी मिलके मारा आपको? मेरी नंदों ने 18 दिसंबर को मुझे बहुत 18 को मारा, लेकिन 19 को नहीं मारा। 19 को सिर्फ मेरे ससुर ने मुझे हैरास किया, सेक्सुअल हैरास किया। जब आपकी नंदे आई, वो सारे जो कपड़े जितने भी उतरे थे वो आपके ऊपर दोबारा थे या आप उसी हालत में थी? नहीं, मैं दोबारा ऊपर ले चुकी थी और मैंने लॉक कर दिया था अपना दरवाजा। आपने उनको बताया कि ये मेरे साथ ऐसा घिनौना फेल करने जा रहे थे? मैं चीख रही थी, लेकिन वो मुझे गालियां दे रही थी और उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मैंने 15 पे कॉल कर दी।
अच्छा, फिर मैंने 15 पे कॉल कर दी, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप कहती तो मैं फौरन लेडी। उस उतनी ही देर में मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं तुम्हारी इज्जत हूँ और तुम मेरे मुहाफिज हो, तुम्हारा काम है मेरी हिफाजत करना। फिर ये अपने वालिद साहब के पास गए और इसका और इसके वालिद का इस बात को लेके काफी तनाव हुआ। अच्छा, काफी झगड़ा हुआ था। काफी ज्यादा इनका झगड़ा हुआ और उसके बाद मेरे ससुर ने एक हुक्म सुना दिया कि इस औरत को तलाक दे दो अभी के अभी। अपने शैतानी अमल में नाकामी पर अपने बेटे को कहा कि आपको तलाक दे दो, छोड़ दो इसको। ये बोला और उसको बोला ठीक है, अगर तुम तलाक नहीं दे सकते ना तो इसको मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसको और इसके बच्चों को इस घर से निकाल दिया जाए। आप मुझे बताएं, मैं अपने 2 मासूम बच्चों को लेके कहाँ जाऊं? बड़ा मुश्किल है। किससे इंसाफ मांगू? किसके पास जाऊं? मैंने हर जगह अपील की है कि मुझे खुदा के वास्ते इंसाफ दे दिया जाए, मेरे बच्चों का सोचा जाए। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? फिर जब आप पुलिस स्टेशन गई तो वहां पर क्या मामला हुए? जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो उनको मैंने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई, उनको मैंने अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराई जिसमें मैंने उनको सारा मामला बताया कि मेरे साथ इतनी बड़ी कयामत हुई है, मकसद कामयाब ना होने पे मेरे सर से छत छीन रहे हैं। आपके जो शोहर हैं वो आपके साथ खड़े हैं या अपने बाप के साथ खड़े मेरे हैं? शोहर मेरे साथ खड़े, क्योंकि वो मेरे साथ सारी ज्यादतियां होते हुए देखते रहे, वो सब कुछ देखते रहे कि मैंने 10 साल कितना बर्दाश्त किया। 10 साल से ये जो आप पर जुल्म जारी था, ये आपके जो शोहर हैं उनके इल्म में था? मेरे शोहर के इल्म में सब कुछ था, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे चुप करवाया कि आमना मेरा बाप है, मैं अपने बाप के आपके नहीं बोल सकता, तुम चुप कर जाओ। और मैंने भी, अल्लाह जानता है, सिर्फ इसलिए खामोशी इख्तियार की कि एक वक्त अल्लाह मेरा भी लाएगा, एक वक्त मेरी भी सुनी जाएगी। लेकिन वो 10 साल तक वक्त ना आया। लेकिन इस बार मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। देखिए, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है, मैं एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मैं मार खाना और इस तरह के हैरेसमेंट डिजर्व नहीं करती जो मेरे साथ हो रहा है। जो भी जुल्म हुआ, जो कुछ भी हुआ, मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब वजीर आला पंजाब एक नहायत ही हमदर्द आदमी है, वो सबका दुख दर्द समझते हैं। मैं अपील करती हूँ कि वो मेरे इस मामले पे जल्द अज जल्द गौर करें। इससे पहले अगर मुझे मेरे शौहर से या बच्चों से अलहदा किया गया तो मैं ये जिंदगी हार बैठूंगी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज मेरी मदद की जाए। कोर कमांडर साहब, प्लीज मेरे साथ ताउन किया जाए, ठीक है। आईजी पंजाब, प्लीज मेरे मामले पे गौर करें, मुझे इंसाफ दिलाए इससे पहले कि मैं सब कुछ खो बैठूं। मेरे बच्चों को कौन देखेगा? प्लीज मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, मेरी आप सबसे अपील है। मैंने 10 साल अपने ससुर की सारी बदतमीजियां, दरिंदगी, हैवानियत, उसका गालियां देना सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद की खातिर बर्दाश्त किया। और जब मेरी सास फौत हो गई तो उसकी दरिंदगी, उसकी हैवानियत और उसकी गाली गलोच में इजाफा हो गया। ये सास फौत हुए कितना अरसा हुआ है? 2 साल। 2 साल बाद वो मतलब कि ऐसे खुल गए कि उनको किसी का खौफ ही नहीं रहा कि वो सही कर रहे, वो गलत कर रहे। ना वो अल्लाह से डरते हैं, ना वो किसी चीज से डरते हैं। उन्होंने एक बहू के साथ ये सब कुछ किया, तो आप सोचे वो इंसान किस हद तक गिरा हुआ इंसान होगा। ये जो आपने अपनी जेठानी वाला वाकया बताया, ये भी आपके सास के फौत होने के बाद की बात है? नहीं, मेरी सास मेरी जब वो गई थी तब तो सिर्फ लड़ाई झगड़ात के मामले रहते थे, क्योंकि तब मेरी सास जिंदा थी। ये थी मेरे साथ एक हवा की बेटी आमना तैमूर, एक बड़े खानदान से, बड़े घर से, बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं। आमना, ये सारी चीजों का आपके पास कोई सबूत भी है या महज ये एक इल्जाम तराशी है? नहीं, मेरे पास मेरा मेडिकल मौजूद है जो कि जनरल हॉस्पिटल लाहौर से करवाया गया। ये मेरा मेडिकल मौजूद है। नाज़रीन, ये वो मेडिकल है जो आमना की सच्चाई की गवाही दे रहा है। अंदर से ये टूट चुकी हैं, इनको इंसाफ दिलाया जाए इससे पहले कि ये अपनी जान गंवा दे। खुदारा इसको इंसाफ दिलाया जाए, इसकी इज्जत को मजीद सरे बाजार नीलाम होने से बचाया जाए। आपने नाज़रीन तमाम बातें, तमाम गुफ्तगू सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।